శ్రీనగర్లోని ఎస్కే స్టేడియంలో భారత్ జోడో యాత్ర ముగింపు సభ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. శ్రీనగర్ పీసీసీ ఆఫీసులో జాతీయ జెండాను రాహుల్ ఆవిష్కరించారు. అయితే ఈ సభకు శ్రీనగర్లో కురుస్తున్న మంచు ఆటంకం కలిగిస్తోంది. హిమపాతం కారణంగా శ్రీనగర్ జమ్మూ జాతీయ రహదారిని మూసివేయగా విమాన రాకపోకలకు కూడా అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించిన భారత జోడో యాత్ర ముగిసింది. సోమవారం ఉదయం జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్లో నిర్వహించిన సభతో 3900 కిలోమీటర్లకు పైగా సాగిన యాత్రకు రాహుల్ ముగింపు పలికారు. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 12 రాష్ట్రాల మీదుగా సాగిన ఈ యాత్రను గతేడాది సెప్టెంబర్ 7న కన్యాకుమారిలో ప్రారంభించారు. 2 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు 75 జిల్లాల మీదుగా 3900 కిలోమీటర్లకు పైగా రాహుల్ నడిచారు. జోడో యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా శ్రీనగర్లోని ఎస్కే స్టేడియంలో నిర్వహించనున్న భారీ బహిరంగ సభకు భావ సారూప్యత కలిగిన 23 ప్రతిపక్ష పార్టీలను కాంగ్రెస్ ఆహ్వానించింది. వీటిలో 12 పార్టీల నేతలు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. డీఎంకే, ఎన్సీపీ, ఆర్జేడీ, జేడీయూ, శివసేన, సిపిఎం, సిపిఐ, వీసీకే, కేరళ కాంగ్రెస్, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, పీడీపీ, జేఎంఎం పార్టీల నేతలు సభకు హాజరు కానున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మా ఢిల్లీ కరెస్పాండెంట్ శిరీష్ ఫోన్ లైన్ లో మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు. శిరీష్, స్టేడియంలో తలపెట్టినటువంటి సభకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటి, అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటి? సాయి, గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖున ప్రారంభించి నిన్నటితో శ్రీనగర్ లో ముగిసిన భారత్ జోడో యాత్రకు సంబంధించిన ముగింపు సభ అనేది కొద్దిసేపు క్రితము శ్రీనగర్ లోని షేర్-ఈ-కాశ్మీర్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. మొత్తం 12 రాష్ట్రాల్లో ఈ యాత్ర అనేది కూడా కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు కూడా జరిగింది. 12 రాష్ట్రాలు, 2 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 4000 కిలోమీటర్ల వరకు ఈ పాదయాత్ర అనేది కూడా జరిగింది. పాదయాత్ర ముగింపు కార్యక్రమం అనేది కూడా ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి దాదాపు 21 పొలిటికల్ పార్టీలను ఆహ్వానించడం కూడా జరిగింది. అయితే అనివార్య కారణాల వల్ల కేవలం 12 పొలిటికల్ పార్టీలు మాత్రమే హాజరవుతున్నాయి. డిఎంకే, అదేవిధంగా ఫరూక్ అబ్దుల్లా నేతృత్వంలోని నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, అదేవిధంగా మహబూబా ముఫ్తీ నేతృత్వంలోని పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ, అదేవిధంగా వీసీకే పార్టీ, ఐయుఎంఎల్ పార్టీ, కేరళ కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఐ, అదేవిధంగా ఆర్ఎస్పీ, శిబు సోరెన్, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చాకు సంబంధించిన శిబు సోరెన్ ఈ సభకు హాజరు కావడం కూడా జరిగింది. అయితే శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ నుంచి కానీ, తేజస్వి యాదవ్ రాష్ట్రీయ జనతాదళ్, నితీష్ కుమార్ యునైటెడ్ జనతాదళ్ నుంచి కానీ, అదేవిధంగా సిపిఐఎం కానీ, అఖిలేష్ యాదవ్ సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి కానీ, మమతా బెనర్జీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి కానీ వీళ్ళెవరూ కూడా ఈ సభకు హాజరు కాలేదు. కేవలం కొద్ది మంది మాత్రమే సభకు హాజరు కావడం కూడా జరిగింది. అయితే శ్రీనగర్ లో ఉదయం నుంచి కూడా తీవ్రంగా మంచు అనేది కూడా కురుస్తోంది. అయితే మంచు కురుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ మంచును లెక్క చేయకుండా స్థానిక ప్రజలు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున సభకు హాజరు కావడం జరిగింది. సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపైన, వైఫల్యాలపైన ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు, సభకు హాజరైన ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు కూడా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సాయి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. हमें भी उड़ते रहते हैं। आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ उलट। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, जहाँ पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया,
जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटहुड लाएंगे और यहाँ असेंबली बनकर एक स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूँ। और वो जो आज सड़क पे लगे, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले, और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के आधार में मोहब्बत का दुकान खोलो और हाथ भी खोलो। और इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इतने वर्क होते हुए भी భారత్ జోడో యాత్ర ముగింపు సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको। दर्द गायब हो गया। मैं क्या कर रहा था? मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, तिरंगा भाई, काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है
की दर्द मैं आपको बताना चाहती हूँ। अरे व्हाइट वाला आगे से कर, आप व्हाइट छतरी, हमारी नहीं चल सकती व्हाइट वाला आगे वाला क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे, मगर मैं दिल में व्हाइट आपके साथ आपके साइड में चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, तो कह देता हूँ, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे। मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उनपे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे, यहाँ से रहना चाहता था। दादा उनको बोलो चेयर से उतर जाए, और फिर नहीं, सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। चेयर पे खड़े हैं, तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, नीचे उतरो। शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ। व्हाइट जैकेट, मैंने व्हाइट जैकेट, ओ व्हाइट जैकेट चल रहा था, ओ तो चेयर पे हमारे खड़े साथ हो। एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला, राहुल जी यार, अरे उसको नीचे करो, जैकेट ये बच्चे गंदे हैं, नीचे उतरो यार। इनके पास एक आपको तो ऐसे चेयर पे जाना खड़ा नहीं होकर ताली बजा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है।
ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद वो छाता गंगा की ओर गए। अरे छाता और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। ब्लैक छाता घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता। घर मेरे लिए एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। नीचे करो, सुनता नहीं है यार। और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते हैं, जिसको हम यहाँ शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जंतु कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वहाँ बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना
कैमरा और क्लोज दिखाओ सर, इससे क्लोज नहीं जा सकते, इससे क्लोज नहीं जा सकते। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। थैंक यू। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था, गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था। उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। लो ब्लैक, उसका छतरी लेके हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। अरे हटो, वो देखो कुर्सी पे चढ़ गया। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। लो तो मैं ये सोच रहा था तो और आगे जहाँ हरा लो छतरी चल रहा था, लो, और मुझे उसको सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए